Dear students, welcome back to my channel. So today in this class we will be discussing a result which states that every field is an integral domain, but converse of the result need not be true. What do we mean by a field? What do we mean by a field? So the result is every field is an integral domain, but converse need not be true. So what do we mean by a field? Field means that this R with respect to plus number one, R with respect to plus commutative group, second R star with respect to second operation is commutative group, and third distributivity of dot over plus, right? So R फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड अपीलिनेस और कम्यूटेटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू प्लस. सिमिलरली R with respect to second operation R star, ठीक है, which is nothing but R minus excluding the zero element. So it satisfies all the 5 properties with respect to dot, closure, associative, identity, inverse and commutativeness. And third is distributivity of multiplication, distributivity of second operation over first operation, ठीक है. And integral domain क्या होता है? So this is a field, properties of field. What do we mean by an integral domain? What do we mean by an integral domain? This ring R is said to be an integral domain if number one, this is commutative, ring with unity, and second is whenever प्रोडक्ट ए बी इज 0, अगर किसी भी दो एलिमेंट्स का, इस रिंग के दो एलिमेंट्स का, अगर किन्हीं भी रिंग के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देन उनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, ठीक है. उन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, या तो ए को 0 होना पड़ेगा या फिर बी को 0 होना पड़ेगा. इस स्टेटमेंट की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है? इसको कई ऑथर्स इस तरह से भी लिखते हैं that if A is non-zero and B is non-zero, यानी अगर रिंग के दोनों एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो उनका जो प्रोडक्ट है A डॉट B वो भी नॉन जीरो ही होना चाहिए. तो सम ऑथर्स यूज दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन, ठीक है. सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है. कुछ ऑथर्स इसका यूज करते हैं बुक में, या और कुछ ऑथर्स
So some authors use this definition for this second property of an integral domain. So integral domain क्या होता है? Integral domain must be commutative. Commutative property कौन सी? A dot B must be B dot A for every A and B belongs to ring R. And unity that is the one must belong to R, the multiplicative identity. This one is known as multiplicative identity. So now we have to show that field is an integral domain. Field is an integral domain. Let this be a field. Let this R be a field. ठीक है, तो फील्ड कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. इसको मैं पहले की वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ. इसकी डेफिनेशन को, फील्ड की डेफिनेशन को पहले की वीडियो लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 12 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. 5 प्रॉपर्टीज पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, अगली 5 प्रॉपर्टीज सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, फिर 2 प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी सेकंड ऑपरेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द फर्स्ट ऑपरेशन. सो वी हैव टू शो दैट R is, this ring R is commutative, this ring R is integral domain. This is an integral domain. तो R field है since clearly R is commutative being a field. ठीक है, clearly R is commutative. You can quote the reason here since R is a field. R is a field. ठीक है, R field है, इसका मतलब ये होगा कि A dot B will be equal to B dot A for every A B in R. And unity element and unity that is the multiplicative identity वो भी रिंग R में बिलोंग करेगी because R is a field. और फील्ड की सेकंड ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में, फील्ड सेकंड ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में भी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, यानी कम्यूटेटिव फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड यूनिटी भी होगी विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ऑपरेशन. सो क्लियरली R is commutative and unity belongs to R because R is a field. नाउ अब क्या हमें प्रूव करना रह गया? देखो इंटीग्रल डोमेन में R कम्यूटेटिव भी है और यूनिटी भी. क्यों है R के पास कम्यूटेटिवनेस और यूनिटी? बिकॉज R इज अ फील्ड. अब वी हैव टू प्रूव दैट दिस सेकंड प्रॉपर्टी. सो फॉर द सेकंड वन, let AB is equal to 0. To prove that either A is 0 or B is 0. So if A is 0, we are done with our proof. But if A is non-zero, then we have to show that B is 0. So if A is non-zero element, let A and B belongs to ring R such that AB is 0, right? Let A comma B belongs to ring R such that the product AB is 0. Then we have to prove that either A is 0 or B is 0. If A is 0, then we are done. If A is non-zero, then we have to show that B has to be. अगर A non-zero नहीं है, अगर A non-zero element नहीं है, then we have to show that the element B has to be 0.
Now, since A is non-zero element of a ring R, A is non-zero element of a ring R, so this implies A inverse exists in R. ठीक है, क्यों? Because A is a non-zero element of a ring R, and you can record the reason here. Since R star, which is R minus 0, this is a group. With respect to this is a group. This is a group, and ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स. A belongs to R such that A is non-zero. This set is, ये कौन से एलिमेंट, इसमें रिंग के वो एलिमेंट्स होंगे वो जो नॉन जीरो होंगे, यानी कि दिस इज अ ग्रुप, और ग्रुप में हर एक एलिमेंट का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है. सो ए इनवर्स एग्जिस्ट इन आर, ए इनवर्स एग्जिस्ट इन आर because A is a non-zero element of this ring R. So यहाँ से हम ये लिख सकते हैं that this A belongs to R star and R star is a group, और ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता ही, जैसे कि आपको पता है. ठीक है, जैसे कि आपको पता है ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. नाउ AB is 0, so multiply both sides by A inverse. So using associativity, we can write this one as A inverse AB, and it will be A inverse dot 0, which is 0, and A inverse A is identity, it is B 0, and EB is B, so B is 0. This is what we have to prove. ठीक है, so A inverse exists in R, then A inverse is equal to A inverse A is equal to unity. You can write here 1, right? 1 because 1 is the unity of a ring R. So we can replace this E by 1 because 1 is the unity. So 1 dot B is 0. So 1 dot B is 0. This implies 1 dot B is 0. 1 dot B is B, so B is equal to 0. तो यही हमें चीज प्रूव करनी थी. तो this implies R is an integral domain. R is, ठीक है. तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमें क्या प्रूव करना था. फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, फील्ड की प्रॉपर्टीज ये रही, एंड इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग होता है विद यूनिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यूनिटी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये प्रूव करनी होती है कि अगर दोनों एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं तो उन दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है विद टू सेकंड ऑपरेशन वो भी नॉन जीरो होना चाहिए. या फिर आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि व्हेनेवर दिस प्रोडक्ट ए बी इज जीरो, तो उन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को जीरो होना पड़ेगा, और यही हमने यहाँ पे प्रूव किया है. ठीक है, क्योंकि R फील्ड है तो फील्ड होने की वजह से R कम्यूटेटिव होगा सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और R के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी बिकॉज R इज अ फील्ड, और फील्ड में R स्टार जो है दैट इज अ ग्रुप. नाउ हमें सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी. सेकंड प्रॉपर्टी दैट व्हेनेवर, उसमें हमने क्या किया, लेट A, B बिलोंग्स टू R सच दैट A B 0. तो हमें प्रूव करना है या तो A 0 होगा या फिर B 0 होगा. अगर A 0 होता है तो हमने प्रूव कर दिया, वी आर डन विद आवर प्रूफ. अगर A नॉन जीरो नहीं तो हमें प्रूव करना है कि B को तो 0 होना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में. तो सिंस A इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस रिंग R, इसका मतलब ये होगा कि A बिलोंग्स टू दी R स्टार, बिकॉज R स्टार क्या है, R स्टार इज set of the non-zero elements of ring R. So A belongs to R star and R star is a group because R is a field. So R star is a group. So there exists A inverse in R. There is A inverse in R such that A inverse is equal to A inverse A is equal to 1. ठीक है. Now A B is equal, दोनों तरफ जो है by pre multiplying by A inverse both side. ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा. तो हमारा प्रूफ यहीं पे खत्म होता है. ठीक है,
नाउ अब हमें इसका प्रूव करना है कन्वर्स पार्ट। फॉर द कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट के लिए टेक दिस रिंग R टू बी सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, देन this set of integers with respect to plus dot this is an integral domain, ठीक है, because it is commutative, कोई भी दो इंटीजर्स लो उनका जो प्रोडक्ट होगा 1 डॉट 2 इज इक्वल 2 डॉट 1 वो हमेशा सेम आएगा, सो इट इज कम्यूटेटिव। ये रिंग कम्यूटेटिव है और इस रिंग में यूनिटी वन एलिमेंट भी बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू z, so it is commutative ring with unity, it is commutative ring with unity। और सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या की कि दो एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो हैं, तो अगर कोई दो इंटीजर्स नॉन जीरो है हमारे पास, तो उन दोनों नॉन जीरो इंटीजर्स का क्या कभी प्रोडक्ट जीरो हो सकता है? अगर a नॉन जीरो है, b नॉन जीरो है, तो क्या उन दोनों नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो भी तो नॉन जीरो ही रहेगा, ठीक है। नाउ बट दिस इज नॉट अ फील्ड, z is not a field, z is not a field, z फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि take an element a is equal to 2 belongs to set of integers, so it does not have a multiplicative inverse, then this element a does not have a multiplicative inverse in set of integers। तो इस a is equal to 2 का जो multiplicative inverse है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, 2 को क्या हम ऐसे लिखते हैं 2 डॉट सम एलिमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो इस तरह क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट हम लिख सकते हैं जो इंटीजर हो? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा 1/2, बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, सो वी कैन राइट हियर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी b belongs to set of integers। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना such that a dot b is equal to b dot a is equal to 1, ठीक है। ये लिखना है आपको एग्जाम में, ये वाला पोर्शन नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है टेक a is equal to 2 belongs to set of integers, then there does not exist any b belongs to set of integers such that a dot b is equal to b dot a is equal to 1। so इसके सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, एक्सेप्ट दो एलिमेंट्स का होगा, कौन कौन से, 1 एंड -1, सिर्फ ये दो एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सक्लूडिंग जीरो को तो हम चेक ही नहीं करेंगे। सो 1 और -1 दो ही एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देख लो, आप यहीं पे देख लीजिए 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम क्या लिखें, कौन सा इंटीजर कौन सा इंटीजर हमें यहाँ पे प्लेस करें कि उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए? देयर इज नो सच इंटीजर, सो that's why this set of integers is not a field, क्योंकि field बनने के लिए सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, तो इस सेट ऑफ इंटीजर्स के पास सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फील्ड।